you, and today we are going to start practice set 5.3. Yesterday I have showed you what do you mean by the event, how to solve such events and all. So this is the first question. The question I made it short because the question was so long. So I make it short like write S. S means you know that sample space, you have to write number of sample points. Then event is given to you, so you have to write down the event A, B and C in the form of set. Okay. Then number of A, as you know that what do you mean by the number of A? How many sample points are present in a set A? Okay. So number of A, number of B and number of C. Such type of question asked for 4 marks or 3 marks. Okay. So in that the distribution of marks is like that. First of all, one die is rolled. The question is one die is rolled. So in that what you have to do? First you have to write the sample space and number of sample space. Here you will get 1 marks. Okay. So one die is rolled. Here you will get 1 mark. After that 3 event is given to you. Event A, B and C. So for event A, if you will write the proper A, set A, you will get half marks, and number of A, proper writing, half marks. So in this way you will get 1 mark for event A, 1 mark for event B and 1 mark for event C. So in all you will get 4 marks. Okay. So this is a way to write, this is the way to distribution of marks. Okay. So let's start this. So the first we'll write one die is rolled. So when you are writing one die is rolled, so you know that what is the sample space for this? Okay. So S is, as you know that 6 are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this is S. Don't just see the question. S you have to write. So you have finished with the S. S. After that number of S is there. So number of S. So how many numbers are there? How many sample points are there? 6 sample points are there. So 6 you will write. So here you will get 1 mark. Okay. Here you will get 1 mark. Now we'll start with the event. Okay. Event A. Event A. What is the event A? Even numbers on the upper face. Okay. So event A is even numbers on the upper face. On the upper face. Okay. So even numbers. So from the set, from the sample space, you have to find out the even numbers. Even numbers ये नहीं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 so on. ऐसा नहीं, बल्कि ये जो हमने सैंपल स्पेस लिखा हुआ है इसमें से इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर कौन सा है? 2, 4, 6. So you will write A, set A you will write 2, 4, 6. After that number of A is also, so number of A is 3. So here you will get 1 marks. Here you will get 1 marks. Here you will get 1 mark. Okay. After that event B. Event B. What is the event B? Odd numbers on the upper face. You can write over here and then B. Now how many numbers are there in the sample space? So 1, 3 and 5. 1, 3, 5. Okay. So how many number of sample point there? 3. So number of sample point is 3. Here you will get 1 mark. Okay. Very easy. बहुत simple है, बहुत easy है. Easily you will get the marks. Event C. Prime numbers. You know the prime numbers 2, 3 and 5. These are the prime numbers from the set. So you will write C 2, 3, 5. Number of C is equal to 3. So in this way you can get the marks very easily. Okay. So event A, event B and event C. So these are the subset of the sample space. ये सबसेट है क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी नंबर्स हमने निकाले हैं, जो भी नंबर्स हमने इस सेट में लिखे हैं, all we have written from the sample space. सब हमने sample space में से लिखे हैं. So if this is the set, so A, B and C, these are the subset. Subset means the sets which we form from the set. Okay. So subset. So in this way you can solve such type of question. Very easy it is. Just you have to pay concentration.
Don't forget to write S, number of S. Just look at the question very carefully. The question was too long. I made it short. S, number of S, A, B, C, number of A, number of B, and number of C. So in this way, you can do that. Okay. Now see the next question. Yes. Yatharth, do you have any doubt? Yatharth? If you don't have a doubt, then just lower your hand. You can take the screenshot. Then we'll do the next question. We will then see some question of the worksheet from the January. Some question has been asked from this chapter and from this practice set. So now see the second question. Same we have to write S, number of S, A, B, C, number of A, number of B, and number of C. The question is 2 dice are rolled. 2 dice are rolled. Here I will write directly. I will not write the question. We will write 2 dice are rolled. Okay, 2 dice are rolled. So here what will be your sample space? 2 dice are there. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. I told you na. So 36 are there total. But I have to write that. Okay, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Okay, first from the 1. Then we'll start from 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Okay, very simple. आपको बस concentration रखना है. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Okay, then we'll start with the 4. In the same way, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, and 4, 6. Okay, then we'll start with the 5. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Okay, then we'll start with the 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Okay, so in this way you have 36. Okay, you can count it and you can write it. Okay, so these are the S. This is the sample space. Okay, now we write down the number of sample space, that is 36. Okay, so here you will get 1 marks. Just for writing S and number of S, you will get 1 mark. So whatever you are writing, just keep a concentration. If a single number will be less, then your answer will be wrong. At least this common thing: 1 dice roll, 2 dice are rolled, 2 coins are rolled, 3 coins are rolled. So you must learn that. Means you must do a lot of practice, that there should not be any mistake. Okay, now we'll see the event A. What is the event A? Okay, and directly we'll write down the answer. The sum of the digit on the upper face is sum. Sum means addition. On the upper face is a multiple of 6. Now see, first of all, what is the question? The sum of the digit. Sum means addition. When you will add both the numbers on the first die and the numbers on the second die. If you will add both the numbers, you must get a multiple of 6. Multiple of 6 means what? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18. So such number 6, 12, 18. आपको ये मिलना चाहिए after addition of both the numbers. तो हमको यहाँ पर बहुत concentration रखना है, बहुत अच्छे से करना है, because we have 36 number of sample points. So we must not lose a single number. Okay? तो पहले हम क्या करते हैं उसको? We will circle. Okay? हम circle करते जाएंगे. Okay? 5. अब देखो यहाँ 1 and 1 2 होता है. हमको 6 चाहिए, 12 चाहिए, 18 चाहिए. Okay? 1 and 1 2 होता है, 2 and 1 3 होता है, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 5 and 1 6. Okay? हमको 6 चाहिए ना?
So this is 5 and 1 6. Okay, this is the first. 6 and 1 7. This is not the multiple. 2 and 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6. Okay, so in the first line 2 5 7 2 6 8. तो फर्स्ट लाइन में हमको 2 मिले. ओके, अब सेकंड लाइन में हम आते हैं 3 and 1 4, 3 and 2 5, 3 and 3 6. Okay, 3 and 4 7, 3 and 5 8, 3 and 6 9. Okay, 4 and 1 5, 4 and 2 6. Okay, 4 and 3 7, 4 and 4 8, 4 and 5 9, 4 and 16. So again in the second line we got 2. Okay, 5 and 1 6. Okay, here we got 1. Okay, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 and 6 11, 6 and 1 7, 6 and 2 12, sorry 7, 6 and 3 9, 6 and 4 10, 6 and 5 11, 6 and 6 12. Okay, so in the first lane we got 2 numbers, so we'll write here A. आपको ऐसे करना है तो बहुत सिंपल रहेगा, उस टाइम पे आपको बहुत कंसंट्रेशन रखना है. So 1 5. Okay, then 2 4. ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन से. From the second line 3 3. Okay, and 4 2. Okay, और हमारा इस लाइन से हमको क्या मिला 5 1 and 6 6. ओके, तो ये हमको मिल गया. These are the set A. Okay, so 1 2 3 4 5 6. So number of A is 6. So here you will get 6 as your answer. Here you will get 1 mark. तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. द सम ऑफ द डिजिट आपको दोनों को ऐड करना है, उसके बाद देखना है कि वेदर द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6 और नॉट. मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या होता है, 6 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 18 तो पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल आई शोड. इससे मैंने बताया कि आपको मल्टीपल का मतलब क्या होता है. तो हमको 6 मिला और 12 मिला. ओके, नाउ सी द इवेंट बी. इवेंट बी बहुत अच्छे से हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे. इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10. मिनिमम 10 मतलब आपको द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10. मतलब मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम. मतलब 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा. मिनिमम 10, मिनिमम 10 आएगा. ओनली 10 अगर रहता तो सिर्फ 10 चाहिए आपको. ओके, ओनली 10, तो आपको सिर्फ 10 वाले ढूंढना रहता. मिनिमम 10 का मतलब क्या होता है, मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 चाहिए. मतलब 10 11 12 13 ये सब चलेगा, मगर मिनिमम 10 रहना चाहिए. मतलब लोएस्ट नंबर मिनिमम रहना चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा. ओके, तो हमको अब ऐसे नंबर अगेन हमको क्या करने हैं, सर्च करने हैं. तो आपने जब ये क्वेश्चन करो तो आप पेंसिल का यूज करना. पेंसिल का यूज करके जो हमने पहला इवेंट किया था सॉल्व, आप वो सर्कल को हटा दो, है ना, वरना क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लिखने में करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, तो आप ना पेंसिल का यूज करना. अब पेंसिल का जब आप यूज करेंगे तो आप इसको इजीली रब आउट कर सकते हैं और आपकी फिर मिस्टेक नहीं होगी व्हेन यू आर डूइंग फॉर द इवेंट बी. ओके, तो अब हम देखते हैं 10 या 10 से ज्यादा. ओके, 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7, 2 and 1 3. अगेन ये सब आ रहा है 2 3 5 2 4 6 2 5 7 2 6 8. मतलब पहली लाइन में हमको कुछ भी नहीं मिला. ओके, 3 and 1 4, 3 and 2 5, 3 and 3 6, 3 and 4 7, 3 and 5 8, 3 and 6 9, 4 and 1 5, 4 and 2 6, 4 and 3 7, 4 and 4 8, 4 and 5 9, 4 and 6 10. तो हमको सेकंड लाइन में एक नंबर मिला 4 and 6 10. ओके, अब यहाँ पर भी देखो 5 1 6 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 3 5 6 11. ये देखो, है ना, मिनिमम 10 11 चलेगा, तो 5 and 6 11 होता है. 6 and 1 7, 6 and 2 8, 6 and 3 9, 6 and 4 10, 6 and 5 11, 6 and 6 12. तो ये हमको देखो, हमको थर्ड लाइन में बहुत सारे नंबर्स मिले हैं. सो आई विल राइट हियर इवेंट बी का
हम यहाँ लिखते हैं कितने हैं उसके अंदर सेट में। फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं था, सेकंड लाइन में 4 6 था, सो वी राइट 4 6। ओके, इस लाइन में 5 5 5 6, ओके, 6 4 6 5 6 6, ओके, ये इतना आपको मिला है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 नंबर इज देयर, सो नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 6। इन दिस वे यू कैन सॉल्व। देखो फर्स्ट लाइन में हमको 1 मिला था और जो थर्ड लाइन थी उसमें हमको टोटल कितने मिले थे? 5 मिले। सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द आंसर। ओके, सिंपल है, बहुत आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ओके, यस सचिन फ्रॉम नेहरू नगर। सचिन, हैव एनी डाउट? यस मैम। यस से मैम ये एक बार वापस एक बार बताइए ना। कौन वाला? सेकंड ये इवेंट लास्ट। की? हाँ देखो इसमें क्या था हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। जब आप डिजिट को सम करते हो, जब उसको ऐड करते हो तो मिनिमम 10 आना चाहिए। मतलब दोनों नंबर्स को, जो हमने हमारा सेट बनाया है ना, उसका नंबर जो है ना, उसको जब आप ऐड करोगे तो मिनिमम 10 आना चाहिए। मतलब ऐड करने के बाद 10 आना चाहिए, तो 10 से ज्यादा आना चाहिए। 10 आ गया, हाँ 10 ये 10 से ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ 9 भी नहीं चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा। तो पहली लाइन में हमको कुछ नहीं मिला था, हमने ऐड कर करके देखा है। सेकंड लाइन में हमने 4 और 6 को ऐड किया, सो वी गॉट 10। ओके, यहाँ पे हमने 5 और 5 को ऐड किया तो 10 मिला, 5 और 6 को ऐड किया तो 11 मिला। मैंने कहा कि मिनिमम 10, 10 चलेगा, 10 से ज्यादा भी चलेगा, कम नहीं चलेगा। ओके, so 5 and 6 11, 6 and 4 10, 6 and 5 11, and 6 and 6 12. So in this way you can write down all such numbers in a set B, and you can write down the number of B. Okay, यस मैम, अंडरस्टैंड। okay, now the third question, sorry third event। और एक बार याद रखना है आपको इसको अटेम्प्ट करना ही करना है। मैंने आपको कल ही बता दिया था, आपको ये समझना है, दिस चैप्टर इज कंपल्सरी, बस ऐसा समझ लो, आपको ये करना ही करना है। इसमें है ना क्या होता है, कभी कभी हम इतना लॉन्ग क्वेश्चन देख के ना हम थोड़ा सोचते हैं भी कौन इतना टाइम पास करेगा, इतना इसमें टाइम लगता है, तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। नहीं, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे लीस्ट चांसेस होते हैं आपके मार्क्स कट होने के और आपकी कोई मतलब मिस्टेक निकलने के। यस आमिर खान, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, इवेंट सी। इवेंट सी तो बहुत सिंपल है, आप तो यूं कर सकते हैं, क्या है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द फेसेस। सेम डिजिट मतलब 1 1 2 2 3 3, द सेम डिजिट। आपको तो उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, सेम डिजिट चाहिए आपको। सेम डिजिट का मतलब क्या? हेलो हेलो यस बोलो। मिस वो नीचे वाला नहीं समझा। कौन सा, सेकंड या ए? ए या बी, कौन सा इवेंट? ए ये नहीं समझा। The sum of the digit on the upper face is a multiple of 6। मतलब जब आप दोनों नंबर्स को ऐड करते हो, यहाँ पर जो हमने सेट बना के रखे हैं 1 1 1 2 1 2 1, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है वो 6 का मल्टीपल चाहिए। 6 का मल्टीपल मतलब 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब 6 से कंप्लीटली कौन नंबर्स डिवाइड होते हैं? तो जस्ट रीड आउट द टेबल ऑफ 6। तो 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। मतलब यही नंबर जो है ये 6 के मल्टीपल्स है। ओके, तो आपको ऐड कर करके देखते जाना है कि 6 आ रहा है क्या, 12 आ रहा है क्या, 18 आ रहा है क्या, आपको ऐसा देखना है। और अगर ऐसा आता है तो आपको यहाँ पर उसको सर्कल करते जाना है। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया तो हमको क्या मिला, 5 1 मिला, 5 and 1 6 होता है। अब 5 में जब 1 मिलाते हैं 6 होता है, मतलब ये 6 का मल्टीपल है, 6 1 6। 2 में 4 मिलाते हैं, अगेन 6, ये 6 का मल्टीपल है। 3 and 3 6, ये भी 6 का मल्टीपल है। 4 and 2 6, ये इसका मल्टीपल है। 5 and 1 6, ये भी 6 का मल्टीपल है। और 6 and 6 12, 12 ये भी 6 का मल्टीपल है। तो आपको ये नंबर्स को लिखना है, उसको काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। ओके,
Okay, Amir. Okay, now see the event C. The same digit मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सेम डिजिट्स हैं हमारे सैंपल स्पेस में, तो ये भी हम काउंट करते हैं तो ये आ जाता है आपका 6. So in this way you can solve this type of question. Okay, so if you wanted to take the screenshot, take the screenshot, then we will do the next question. Okay, so the next question is 3 coins are tossed. 3 coin toss होते हैं, इसका मतलब आपका सैंपल स्पेस 8 होता है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले S लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ S लिखेंगे, फिर हम सारे इवेंट देखेंगे, इवेंट A, B एंड C. तो 3 कॉइन्स को जब टॉस किया जाता है, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल मिलता है, मतलब 2. 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 मिलता है, और 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 8 मिलता है. So see here the question is 3 coins are tossed. Okay, तो यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस लिखना है सबसे पहले. So in this I will directly write down the solution S. तो आपको क्या मिलेगा S? हेड हेड. ओके, हेड हेड 10. ओके, देन हेड टेल हेड, देन हेड सॉरी यस हेड टेल टेल, ये हो गया. उसके बाद है टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड and टेल टेल. Okay, must be 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, nothing should be repeated. Okay, should be conscious. So number of S is 8. 8. Okay, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस. Here you will get 1 marks. Okay, अब हम देखते हैं हमारा इवेंट A. क्या है हमारा इवेंट है? आपको पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको. क्या है हमारा क्वेश्चन? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड. टू गेट एटलीस्ट 2 हेड. अब यहाँ पर पहले इसका मतलब आपको समझना चाहिए. एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए. 3 भी चलेगा, क्योंकि 3 से ज्यादा तो है ही नहीं हमारे पास. 3 भी चलेगा. 2 चाहिए, 3 चाहिए, 2 से कम नहीं चाहिए. एटलीस्ट 2 हेड, जैसे मैंने बताया था आपको मिनिमम 10, एटलीस्ट. तो ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड, आपको कम से कम 2 हेड चाहिए. 3 चलेगा, 1 नहीं चलेगा. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा है ऐसा. तो यहाँ पर देखो 2 हेड किसमें है? 3 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, इसमें 2 हेड है, इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ तो है ही नहीं. ठीक है, सो वी विल राइट हियर हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड. तो हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3 एंड 4. सो नंबर ऑफ A इज 4. ये ऐसे आपको सॉल्व करना है. ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व. ओके, नाउ इवेंट B. इवेंट B मैं तो बोलती हूँ बहुत इंजॉय करना चाहिए इसको, मतलब कि बहुत अच्छा है ये. इसमें आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं. आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. सेकंड इवेंट टू गेट नो हेड. अब सब में तो हेड है, सिर्फ एक ऐसा है जिसमें एक भी हेड नहीं है, वो है टेल टेल टेल. तो एक ही हमारे पास जिसमें एक भी हेड नहीं है, टेल टेल टेल. सो नंबर ऑफ B इज 1. ओके, टू गेट नो हेड मतलब हेड नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं. ओके, अब उसके बाद हमारा C इवेंट है. क्या है ये? टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन. सेकंड कॉइन मतलब बीच वाला.
क्योंकि देखो जब हम ये लिखते हैं ना तो ये हेड हेड हेड, ये पहला हेड जो है फर्स्ट पॉइंट का है, दूसरा हेड सेकंड पॉइंट का है और थर्ड वाला हेड ये तो कौन सा है, थर्ड पॉइंट का है। ऐसे यहाँ पर हेड हेड टेल, मतलब सेकंड पॉइंट पे हेड चाहिए आपको, सेकंड पॉइंट पे मतलब मिडल वाले पे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है सेकंड वाले पर, फर्स्ट और थर्ड पर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बोल रहा है टू गेट हेड ऑन सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पर भी तो चलेगा, थर्ड पर भी तो चलेगा, लेकिन सेकंड पर कंपल्सरी उसको चाहिए। तो हेड 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 टेल, अब यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ सेकंड पॉइंट पे टेल है, हेड टेल टेल, यहाँ पर भी सेकंड पॉइंट पे टेल है, यहाँ है टेल हेड टेल, यहाँ सेकंड पॉइंट पे है, यहाँ पर भी नहीं है, टेल टेल हेड है, मतलब सेकंड पॉइंट पे टेल है, यहाँ है टेल हेड हेड। ओके, तो यहाँ पर हम जितने भी है, यहाँ पर तो है ही नहीं, सो विल राइट हेड 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 टेल टेल हेड टेल एंड टेल हेड हेड। ओके, सो नंबर ऑफ सी इज 4। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, यू कैन एंजॉय दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो देख लेंगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ये सब तो कैसा नहीं, आपको पता होता है 3 कॉइन्स है तो यही आएगा सैंपल स्पेस, 1 डाई है तो ये आएगा, 2 डाई है तो ये आएगा। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग भी है तो उसमें आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो कॉइन के डाई के ये सब क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको पहले से पता होता है सैंपल स्पेस, लेकिन जो क्वेश्चन अब आगे आ रहा है उसमें आपको पता नहीं होता है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो वहां पर आपको क्रिएट करना होता है सैंपल स्पेस। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, 3 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है, 1 डाई है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है सैंपल। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग, अब देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फॉर्म यूजिंग। अब कौन कौन से नंबर है 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपके पास, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ओके, ये आपके पास 5 डिजिट दिए हुए हैं विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। तो पहले तो आपको बहुत ध्यान से पहले बनाना पड़ेगा इसको। ओके, पहले आपको बहुत ध्यान से बनाना है इसको, पहले हम बना लेंगे उसके बाद सैंपल स्पेस लिखेंगे। ओके, तो पहले हम बनाते हैं। हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, 0 1 2 3 4 5, पहले बना लेना है आपको। पहले हम 1 से बनाएंगे क्योंकि 0 से नहीं बना सकते डायरेक्टली, 0 से बनाएंगे तो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 रॉन्ग है, क्योंकि 0 1 मतलब 1 डिजिट नंबर। ओके, कल मैंने आपको बताया था। तो 1 0 10 12, पहले 1 से करेंगे, 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसा। तो 1 0 10 1 2 12 1 3 13 1 4 14 एंड 1 5 15। अब ये 1 से हो गया, अब 2 से बनाएंगे, 2 0 20 2 1 21, फिर 2 3 2 4 2 5 2 3 2 4 2 5, फिर 3 से बनाएंगे, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5, 3 3 नहीं लेना, रिपीटेशन हो जाएगा। फिर हम 4 से बनाएंगे, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5, फिर 5 से बनाएंगे, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, 5 5 नहीं लेना है क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। अब हम इसको काउंट करते हैं, अभी हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। पहले आपको एकदम श्योर हो जाना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, एक बार चेक भी कर लेना है कुछ नंबर छूटा तो नहीं, ठीक है। तो पहले हम 1 से चेक करते हैं। ओके, 10 12 13 14 15, कितने नंबर बने 1 से, 1 2 3 4 5। अब 2 से देखेंगे कितने नंबर्स बने, 1 2 3 4 5, मतलब हर एक से 5 5 बनेंगे, ठीक है। तो देख लेते, काउंट कर लेते कितना हुआ। यहाँ पर ये 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, तो यहाँ पर अगर एक नंबर से 5 नंबर्स बन रहे हैं तो हमारे पास 5 नंबर्स हैं।
तो कितने बनना चाहिए? 5 5 सा 25। हमारे पास एक डिजिट से 5 नंबर बन रहे हैं, तो हमारे पास 5 डिजिट्स है, तो कितने बनना चाहिए? 25। 5 5 सा 25। ऐसे आपको वेरीफाई कर लेना है। तो नंबर ऑफ एस इज 25। ओके, यहाँ पर आपको तो एकदम आपने ये करेक्ट किया ना, तो आपको इतनी खुशी होगी कि यस आई हैव डन दैट। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम इवेंट ए। आपके पास इवेंट ए जो दिया हुआ है वो है द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। अब यहाँ पे अब हमारा शुरू होता है इवेंट। अब यहाँ आपको कॉन्शियस रहना है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस के पर आपको 0 चाहिए, 2 चाहिए और 4 चाहिए। 6 तो है नहीं हमारे पास। तो देखो 10 है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 20 है, 21 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है, 30 है, 32 है, 34 है, 40 है, 42 है, 43 नहीं है, 45 नहीं है, 50 है, 52 है और 54 है। ठीक है, ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं इवन नंबर्स को इन अ सेट फॉर्म। 10 12 14, फिर है 20 24 30, ओके 32 34 40 42 50 52 54। ओके, अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। ऑल आर इवन नंबर्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। So number of A is 30. So 13 numbers are even. The numbers we have formed. Okay, so the number formed is even. तो आपको फिर से एक बार देख लेना है, 10 है, 12 है, 14 है, 20 है। ओके, ये सब क्या है? हमारे इवन नंबर्स हैं। अब उसके बाद हमारा इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर आपको पहले तो सबसे पहले हमने जो पहला वाला किया है उसको पूरा ये आपको ऐसा हटा देना है, ठीक है, ताकि हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है इवेंट बी का, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। कि हमने जो नंबर्स बनाए हैं उसमें से कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है तो इतना डीप मैं नहीं जाती हूँ, बस हमको ये पता है 3 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, मतलब ऐसे नंबर्स जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 12 होता है ना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 10 जा 30। ओके, अब उसके बाद 31 है क्या? नहीं होता है। उसके बाद 32 ये होता है क्या? करके देखना है, कैसे करेंगे हम। 3 1 जा 3 नहीं होता है, 3 and 4 7 होता है, ये भी नहीं होगा। 3 5 जा ये भी नहीं होगा, 35। 40 होता है क्या? ये भी नहीं होगा। 41 भी नहीं होगा। 42 ये हो जाएगा। अब इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट बताती हूँ। दोनों नंबर्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद अगर आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होता है। देखो 4 में 2 मिलाएंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आता है ना 3 के टेबल में, तो ये नंबर्स है। अब मैं इसको करके बताती हूँ आपको। देखो 42 है, 3 से डिवाइड करती हूँ। ओके, 3 1 जा 3, 4 minus 3 1, bring 2, 3 4 जा 12। देखो कंप्लीटली डिवाइड हुआ ना, है ना? तो 42 कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो आप ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो 42 होता है। अब यहाँ पे ये नहीं होता था ना, 4 में 1 मिलाएंगे 5, 5 कहाँ आता है? 4 में 0 मिलाएंगे 4, ये भी नहीं आता है। 4 में 3 मिलाएंगे 7, नहीं होगा। 4 में 5 मिलाएंगे 9, 9 आता है ना 3 के टेबल में, तो ये होगा। अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। ओके, 45 को 3 1 जा 3, 4 minus 3 1, 5 3 5 जा 15। ओके, तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट।
तो 4 + 5 9, तो 45 भी होता है, तो 45 आ गया। 5 0 नहीं होगा, 5 1 6 ये होगा ना, 5 and 1 6, 6 आता है ना, करके देखते हैं। 51, 3 1s are 3, 5 - 3 2, 21, 3 7s are 21, तो 51 भी होता है। ठीक है, तो 51 भी हमारा 3 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला। 5 and 2 7, 5 and 3 8, ये नहीं होगा। 5 and 4 9, ये होगा। मैं बता चुकी, देखो यहाँ पे 4 and 5 था, 9 हुआ था, यहाँ 5 and 4 है, ये 9। तो ये सारे नंबर्स हैं जो क्या होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। सो विल राइट 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51 and 54। ओके, तो ये सारे नंबर जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो नंबर ऑफ बी इज 9। सिंपल, आपको आना चाहिए, थोड़ा कॉन्शियस होना है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना है। एक एक मार्क्स के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है आपको। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इवेंट इज इवेंट सी। इवेंट सी बहुत इजी है। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 मतलब 51, 52, 53, 54 है ना, तो बहुत सिंपल है। 51, 52, 53, 54, सो नंबर ऑफ सी इज 4। ये आपका हो गया आंसर। यस, अभी भी है वंशिका, क्या डाउट है बेटा? डू आस्क योर डाउट। क्या डाउट है बच्चा, बोलो जल्दी से, फिर थोड़ा सा मैं एक्टिविटी शीट में क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ, मुझे आपको वो बताना है। ओके, तो ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व करना है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस सोनू, फास्ट, वी डोंट हैव अ टाइम, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। आपको अभी वर्कशीट कंप्लीट करनी है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टीचर वो लास्ट का नहीं समझना है। लास्ट 80 वाला? हाँ यस। हाँ, क्या था? द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। एक्चुअली यहाँ वक्त में स्पीड में चली गई, मुझे ऐसा लगा आपको समझ में आ गया होगा। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। 50 से ग्रेटर नंबर्स को आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो 50 से ग्रेटर नंबर कौन सा था? 51, 52, 53, 54, तो आपने उसी को लिख दिया। ओके ओके okay, so let me share the screen. The question asked in your worksheet is okay, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वर्कशीट में फॉर 4 मार्क्स। A sanitation committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. आपको एक सैनिटेशन, जैसे मैंने आपको इससे पहले वो बताया था ना कि आपको सेफ्टी वाला कल बताया था मैंने आपको, कि उसमें आपको तो कैसे करना था कि उसमें 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स से आपको 2 की कमेटी बनाना था। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, a sanitation committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. अगर आपको बॉयज लेना है so you will take B1, B2, B3, ये 3 बॉयज हो गए, एंड 2 गर्ल्स G1, G2. Write sample space S and number of sample point, number of S. Also write the following event in set form and number of sample point in the event. ठीक है, तो पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, आपको 2-2 का बनाना है, उसके बाद आपको ये करना रहेगा इवेंट को। एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। आपको ऐसी पेयर को ढूंढना है जिसमें एक गर्ल हो, कम से कम 2 गर्ल भी चलेगी। कमिटी मस्ट बी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जिसमें एक बॉय एंड एक गर्ल हो। कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज ओनली,
सिर्फ बॉयज की कमेटी रहेगी। और कंडीशन फॉर इवेंट डी इज एट द मोस्ट वन गर्ल शुड बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। एट द मोस्ट मतलब 2 चलेगी। अब देखो आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ से उठा के दिए, कभी कभी हम क्या होते हैं ना, हम जो सॉल्व एग्जांपल होती है, अब देखो 5.3 में ना सॉल्व एग्जांपल थी इसकी। लेट मी शेयर वन मोर। आपको यहाँ पर ना इसका आंसर बहुत इजी था। अगर आप लोग समटाइम्स व्हाट यू आर डूइंग ना, यू आर नॉट सॉल्विंग द सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको थोड़ा सा बुक को बहुत अभी थरो स्टडी करना है बिकॉज यू हैव अ टाइम। देखो यहाँ पर ये आपको इजीली ये आंसर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, सी हियर सेम क्वेश्चन इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 120। सी a sanitation committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls। अब देखो सपोज B1 B2 B3 are 3 boys and G1 G2 are 2 girls। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बनानी है कमेटी, 2-2 की कमेटी बनानी है आपको। तो B1 B2 पहले आप बॉयज की बना लो, B1 B2 देन B1 B3, फिर B2 B3 एंड देन B2 B1। ओके यहाँ पर देखो B1 B2 B1 B3 एंड B2 B3, पहले आप बॉयज की बना लो, फिर एक बॉय और एक गर्ल की बना लो। तो आप मल्टीप्लाई करो, B1 वाले को G1 G2 से, B2 वाले को G1 G2 से और B3 वाले को G1 G2 से, फिर गर्ल्स की बना लो। सो B1 G1 B1 G2, देखो B1 के साथ दोनों गर्ल्स आ गए, अब B2 के साथ B2 G1 B2 G2 B3 G3 और B3 G2, ओके, और G1 G2। तो नंबर ऑफ एस आपके आ जाएंगे 10। ओके आपको ये बहुत सिंपल है। कंडीशन क्या था, एटलीस्ट 1 गर्ल, एक गर्ल चाहिए ना आपको, बॉयज नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल चाहिए, 2 गर्ल्स चलेगी। मैंने पहले बताया था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आपने B1 ले लिया, G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 एंड B3 G2 एंड G1 G2। जैसे आपको 7 मिल जाएंगे, ऐसे आपको 1 बॉय एंड 1 गर्ल शुड बी देयर। तो आपको सिर्फ 1 गर्ल एंड 1 बॉय की लेना है, 6 आ जाएगा। उसके बाद देयर शुड बी ओनली बॉय, ओनली बॉय का ऐसा 3 था, B1 B2 B1 B3 एंड B2 B3, तो ऐसा 3 आ जाएगा। और जो इवेंट डी था उसमें क्या था, देयर कैन बी एट मोस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी, एट मोस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी। तो यहाँ पर B1 B2 एट मोस्ट 1 गर्ल, एट मोस्ट 1 गर्ल का यहाँ मतलब क्या होगा कि आपको मतलब ऐसी कमिटी चलेगी जहां पर गर्ल भी हो और बॉयज भी हो। ओके तो यहाँ पर B1 B2 B1 B3 मतलब बॉयज को भी लेना है और गर्ल्स को भी लेना है, ओनली बॉयज, ओनली गर्ल्स नहीं चलेगी, ओनली गर्ल्स नहीं चलेगी, G1 G2 आप इसमें नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये इवेंट डी बताने के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन बताया था। कंडीशन फॉर इवेंट डी इज दैट देयर कैन बी एट मोस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी। अब यहाँ पर एटलीस्ट नहीं बोला था, एट मोस्ट बोला था, मतलब ये कि आपको एक गर्ल चलेगी, अगर सिर्फ बॉयज रहेंगे भी तो चलेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बॉयज वाला लेना है, B1 B2 B1 B3 B2 B3, और उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज का लेना है, ओनली गर्ल्स वाला आपको नहीं लेना है। ओके तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, विच इज गिवन फॉर 4 मार्क्स। आप सॉल्व एग्जाम्पल जो आप उसको भी करते जाइए, देन इट विल बी इजी फॉर यू। ओके एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें? तो आप सॉल्व एग्जाम्पल भी करो, बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है उसके अंदर, आप उसको कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको इवेंट कुछ भी आ सकता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सैंपल स्पेस शुड बी करेक्ट एंड व्हाट एवर यू आर रीडिंग, क्योंकि इवेंट इज नॉट फिक्स, कुछ भी इवेंट दे सकता है। ओके ओके मैम, कैन आई वाइंड अप? Yes, yes. Okay, so everyone have a nice day and do study, do a lot of practice.